توکل ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریاؤں میں راستے بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملا دیتا ہے، جو شدید طوفان کے باوجود کشتی نوح کو پار لگا سکتا ہے، تو پھر کیا تم اس اپنے رب پر توکل کیوں نہیں کرتے کہ جو ناممکن کو بھی ممکن کرنے پہ قدرت رکھتا ہے؟ اب ایک بڑا ہی دلچسپ اور دلوں کو موہ لینے والا قصہ اب لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنے والا ہوں۔ ایک بڑا ہی نیک اور دانا شخص، بڑا ہی عبادت گزار، پختہ ایمان والا، اللہ کا پیارا، اب اس کی بد نصیبی یہ کہ اس کی جو بیوی ہے وہ بد زبان ہے۔ عموماً ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں کہ بسا اوقات عورتوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بولنے کی بہت زیادہ عادی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناشکری پہ اتر آتی ہیں۔ اب وہ بندہ غریب تو ہے لیکن توکل اس کا کتنا مضبوط ہے ذرا دیکھیے۔ اب وہ نیک آدمی ہے، غریب ہے، کچھ دنوں سے کام کاج پر وہ نہیں جا رہا، گھروں میں فاقوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ کچھ دن تو ان کی بیوی نے صبر کیا، اچانک ایک دن ایسا ہوا، سارا دن فارغ بیٹھے گھر گزارا، شام کا وقت ہوا تو جب سونے لگے تو سونے کے وقت بیوی کی زبان کھل گئی، کہنے لگی کہ تو کیسا بندہ ہے کہ ہمارے بچے آج 3 دن ہو گئے بھوک سے بلک رہے ہیں اور تم ایسے فارغ نکمے نکھٹو سارا دن پڑے گھر رہتے ہیں اور پڑے پڑے سارا دن برباد کر دیتے ہو۔ جاؤ کوئی کام کاج کرو، کوئی محنت مزدوری کر کے لاؤ تاکہ بچوں کا پیٹ پالا جا سکے۔ اب وہ ایماندار آدمی تھا، شریف آدمی تھا، اس نے آگے سے بحث و مباحثہ نہیں کیا، تکرار نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ رات کو یوں ادھم پیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شور برپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صبح میں کام پہ چلا جاؤں گا، کوئی روزی کما کے لاؤں گا، ابھی آرام سے سو جاؤ اور بچوں کو بھی سونے دو۔ آخرکار میاں بیوی کے درمیان یہ معاملہ طے پایا کہ صبح کو شوہر نے کہا میں کام پہ جاؤں گا۔ اب اللہ رب العزت کی ذات بھی آزماتی ہے، لیکن جو آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر مالک ان کو اتنا نوازتا ہے کہ پھر ان کے در سے لوگ کھاتے ہیں۔ اب اس غریب کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ اب صبح ہوئی، صبح کے وقت نماز روزہ اپنا جس حساب سے کیا اور کام کی طرف چل نکلا۔ اب عموماً آج کل میں بازاروں میں یہی ریت ہے کہ کسی بازار میں چوک چوراہے میں مزدور اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہاں سے آگے ان کو کوئی لے جاتا ہے۔ اب وہ غریب آدمی گھر سے اپنے اوزار وغیرہ ہتھیار لے کے نکلتا ہے تاکہ محنت مزدوری کروں، بچوں کا پیٹ پالوں۔ اب اتفاق سے آدھا دن بازار میں کھڑا رہا، اس کے ساتھ والے جتنے بھی مزدور تھے وہ سارے کہیں نہ کہیں اپنے کاموں پہ چلے گئے، لیکن وہ اکیلا اس بازار میں کھڑا ہے، اس کو کوئی لے جانے والا نہیں ہے۔ اب حیران و پریشان کھڑا ہے کہ مزدوری بھی نہیں ملی اور شام کے وقت گھر جب جاؤں گا تو عورت نے، بیوی نے تو طوفان کھڑا کر دینا ہے، اب کروں تو کروں کیا؟ آخرکار اس نے سوچا کہ کام تو ملتا نہیں ہے، چلو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے ہی کام بن جائے۔ اس نے اپنا سارا کچھ ساتھ لیا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ اب اس وقت سے لے کر رات عشاء کی نماز تک عبادت میں رہا، سارا دن جنگل میں گزار دیا، اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ رات کو آدھی رات کے وقت دروازہ کھٹکھٹایا، گھر آیا تو بیوی نے کہا کہ ہاں میاں جی سنائیں کہ جو مزدوری لانی تھی وہ لائے کہ نہ لائے؟
शोहर कहने लगा कि असल में मैं जिस मालिक की मजदूरी करने गया था वो मालिक बड़ा ही रहीम है, वो मालिक बड़ा ही करीम है, वो मालिक तो बड़ा ही नवाजने वाला है, लेकिन आज उसने कहा है कि कल भी मजदूरी करना, फिर 2 दिन की इकट्ठी मजदूरी तुम्हें दे दूंगा। अब जो बीवी है उसने आगे से कहा कि तुम लोगों से वादे करते फिरते हो कि कल तो परसों ले आना, बच्चे इधर भूख से मर रहे हैं, आज तो सो जाओ, लेकिन कल किसी भी सूरत में मजदूरी लिए बगैर घर को ना लौटना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब वो शरीफ आदमी था, सुकून के साथ सो गया। अब रात खत्म हुई, दोबारा जब दिन चढ़ा फिर वही माजरा, उसी तरह सुबह को उठा, अल्लाह का नाम लिया, फिर मजदूरी पे चला गया। अब फिर वही मामला कि सारे साथ वाले मजदूर काम पे चले गए, लेकिन वो अकेला बेचारा मुफलिसी की चक्की में पिस रहा, वहां बाजार में खड़ा है, लेकिन उसको ले जाने वाला कोई नहीं। दिल में बीवी का भी खौफ है, बच्चों की भूख का भी एहसास दिल में उछल रहा है, और मजदूरी भी नहीं मिल रही। ये तो वही जान सकता है कि जिस पे ये मामलात बीते हों। अब फिर उसी तरह का दिन गुजरा, कोई बंदा लेने ना आया। फिर पहले दिन वाला मामला दोहराया, जंगल में चला गया, सारा दिन इबादत में गुजार गया। शाम के वक्त फिर रात के आखिरी पैर में घर गया कि बच्चे सो चुके होंगे। अब घर गया, घर सोने ही लगा था कि दोबारा से बीवी की आंख खुलती है। जब बीवी की आंख खुली तो बीवी ने पूछा कि सुना माजरा क्या है, माल लाए हो कि नहीं, पैसे लाए हो कि नहीं। उसने कहा कि आज फिर वही मामला है कि उस मालिक ने कहा है कि आज मजदूरी नहीं मिलेगी, कल को इकट्ठी मजदूरी ले लेना, कल 3 दिन की मजदूरी तुम्हें मुकम्मल दे दूंगा। अब बीवी ने काफी शोर मचाया, आखिरकार रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी, सो गए। अब जब सुबह हुई तो बीवी ने एक थैली ली और अपने शोहर नामदार के हाथ में थमा दी और कहा कि मेरी बात कान खोल के सुन लो, ये थैली तुम्हें दे रही हूँ, ये थैली में 3 दिन की उजरत लिए बगैर इस दरवाजे में दाखिल ना होना, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा और अपने मालिक से कहे कि मैं इतने दिन मजदूरी के बगैर नहीं रह सकता, मेरी मजदूरी अदा कर। अब उसने हंसी खुशी वो थैली ली, पॉकेट में डाली और मजदूरी पे चल निकला। अब जब तीसरा दिन था, 2 दिन पहले वो बेचारा बाजारों में धक्के खाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात न सुनी। अब तीसरे दिन इसने कहा कि असबाब तो बहुत इख्तियार कर लिए, मखलूक खुदा की तरफ तो बड़ी निगाहें कर ली, अब उस मालिक हकीकी की तरफ निगाह करके देखता हूं कि जो सारे जहान का राज़िक है, जो सारे जहान को रिज़्क़ तकसीम करने वाला है। अब की बार बाजार में नहीं गया, बल्कि सीधा ही जंगल में चला गया। सारा दिन इबादत और रियासत में गुजारने के बाद रात का आखिरी पहर हुआ, घर वापस लौटने लगा। जब बात कोई ना बनी तो बीवी का खौफ दिल में सर चढ़ के बोलने लगा, और बीवी के डर की वजह से उस थैली में रेत भरी और घर की तरफ चला गया कि कम अज कम जब बीवी ये थैली भरी देखेगी तो रात सुकून से गुजारने देगी, सुबह का मामला फिर सुबह निपटा जाएगा। अब ये बात करके बड़ा परेशानी वाला चेहरा लेके वो घर जा रहा था। घर पहुंचता है, अब ये बंदा घर के करीब ही पहुंचता है तो उस बंदे ने सोचा कि मैंने तो थैली में रेत भर रखी है, अगर बीवी ने देख लिया तो क्यामत बर्पा कर देगी। अब इन्होंने यही बात सोची और रेत जो थैली में भरी थी उसको उल्टाने ही वाले थे कि उनके दरवाजे से बीवी हंसती हुई दौड़ी, और ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे घर से इतनी खूबसूरत किस्म की खुशबू आई कि मेरा सीना मुअत्तर हो गया और मेरी आंखें ठंडी हो गईं। अब मेरी ज़ौजा मोहतरिमा जब मेरे पास आई तो मैंने कहा कि आज इतनी खुश क्यों हो, तो बीवी मेरी कहने लगी कि अंदर आओ, तुम्हें सारा मामला बताती हूँ कि मामला क्या है, आज खुशी किस बात की है और ये खुशबुएं कहाँ से आ रही हैं। अब वो गरीब आदमी था, वो बड़ा सहमे सहमे लहजे में घर गया
अब बीवी ने कहा कि मामला ये था कि तू नहीं आया, रात का कुछ पहर गुजर चुका था। अब मैं बच्चों की भूख की वजह से बहुत परेशान हो रही थी कि अचानक मेरे घर का दरवाजा खटखटाया गया। मैंने दरवाजा खोला तो मैं क्या देखती हूँ कि एक सब्ज लिबास पहने हुए सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग किसी सवारी पे सवार मेरे दरवाजे पे खड़े हैं। उन्होंने मुझे एक थैली अता की और कहा कि ये रख लो, ये तुम्हारे खामिद की 3 दिन की वो मजदूरी है कि जो वो 3 दिन मजदूरी करता रहा है। और हाँ, अपने खामिद को कह देना कि जिस तरह की तूने मजदूरी की थी हमने उस तरह की उजरत तुम्हें अता कर दी है। हाँ, अगर इससे भी ज्यादा अच्छी करता तो मजदूरी और अच्छी अता करते। और हाँ, ये बात याद रख लेना कि आज के बाद अपने शोहर को कभी भी तंग ना करना। वो उस मालिक का गुलाम है, वो उस मालिक का मजदूर है कि जिसकी बारगाह से खाली कोई नहीं लौटाया जाता। अब उस बुजुर्ग ने ये बात कही और वो चले गए। अब उनको तो पता था कि मैं किस मालिक की मजदूरी करता रहा हूँ। उनका तो सर गोया चकरा गया और बेहोशी की हालत में जमीन पे गिर पड़े। अब बीवी फिर परेशान कि आज तो हमारे घर खुशियों ने डेरे डाले, दौलत आई, खाने पीने को सामान आया, और ये मेरा शोहर आज खुशी के वक्त भी बेहोश हो रहा है और इतनी परेशानी वाला चेहरा इसने बना लिया है। आखिर मामला क्या है? तो कुछ देर के बाद जब शोहर को होश आई तो बीवी ने सारा माजरा पूछा। तो वो शोहर रोया भी सही और कहने लगा, कह रही नादान पगली, तुझे पता है कि मैं किसकी मजदूरी करता रहा? मामला ये था कि मैं 2 दिन बाजारों में धक्के खाता रहा, दुनिया वालों के मुंह की तरफ देखता रहा, लेकिन किसी ने मेरी तरफ मुंह भी नहीं किया। आखिरकार मैं थक हार के उस बारगाह हकीकी में चला जाता कि जहां से खाली कोई नहीं किसी को लौटाया जाता। 2 दिन भी मैं वहां जाता रहा। तीसरे दिन मैं मजदूरी वाले अड्डे पे नहीं गया, सीधा ही बारगाह खुदा में चला गया। अब 3 दिन मैं इबादत में गुजार के आया। अब ये देख मेरे मालिक की तरफ से कैसी मजदूरी अता की गई कि वो जो एक थैली तुम्हें बुजुर्ग दे के गए उनके अंदर 50 दिरहम थे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी तरफ गैब की मदद भेजी। और हाँ, तीसरे दिन का मामला पता तुम्हें क्या है? तीसरे दिन मैं तेरे खौफ की वजह से उस थैली में रेत भर के ला रहा था। अब ये देख, जब उन्होंने वो रेत वाली भरी हुई थैली देखी, जब उसको उल्टाया तो क्या देखते हैं कि भरी तो रेत थी, लेकिन अब उस थैली के अंदर से सोना, चांदी, जेवरात, जवाहरात, मोती निकल रहे हैं। अब खुशी के आंसू उस बुजुर्ग के थम नहीं रहे और वो गोया रो रो के बीवी कह रहा है कि हम तो उन मालिकों के गुलाम हैं कि जो कभी भी मायूस नहीं होने देते, बल्कि जब भी देते हैं इतना देते हैं कि जुबानें बंद कर देते हैं। जब बीवी ने ये मामला देखा कि यार वाकई ही जो बंदा अल्लाह पे तवक्कुल रखता है उस बंदे को खाली नहीं लौटाया जाता, बल्कि मालिक झोलियां भर भर के अता कर देता है। बीवी ने भी फिर अपने शोहर नामदार को खुली छूट दे दी कि जाओ तुम भी इबादत करो, तुम भी अल्लाह का शुक्र करो, मैं भी इबादत करती हूँ, अल्लाह का शुक्र करती हूँ। और उस बुजुर्ग ने फिर सारी जिंदगी अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए शुक्र करते करते गुजार दी। अब हमें इससे क्या सबक मिला? छोटियां छोटी परेशानियां, काम की बंदिशें, कारोबार का बंद हो जाना, ये रोजमर्रा के मालूमात हैं, मामूलात हैं। अल्लाह ने कुरान में भी इरशाद फरमाया, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, कि अय्याम का हेर फेर बनी आदम के दरमियान चलता ही रहता है। कहीं चला गया तो कभी कोई नीचे आ गया। मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह पे तवक्कुल मजबूत रखनी चाहिए। तवक्कुल मजबूत होगी तो अल्लाह ऐसे गैबी दरवाजे खोलेगा कि जहां से हमारा वहम गुमान भी नहीं है। लेकिन अगर छोटी छोटी बाल पे, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा शुरू कर दिया जाए और नाशुक्री के डंडोरे पीटने शुरू कर दिए जाएं तो फिर तवक्कुल कमजोर हो जाता है और बारगाह खुदाबंदी से भी महरूमी मुकद्दर कर दी जाती है। हमें चाहिए कि अगर हम किसी भी वजह से मायूस होते हैं तो मायूसी से बचें
اور اللہ پر توکل مضبوط کریں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک بزرگ نے توکل مضبوط کی اور اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے ان کی ساری پریشانیاں دور کر دیں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ذات باری تعالیٰ پر توکل مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہر قسم کی زمینی آسمانی مصائب و آلام سے محفوظ فرمائے۔